able to connect with the students and the eminent guests across the length and breadth of the country is one such movement. Being a growing and established department, we believe that the fifth lecture on the topic New Education Policy must go on with the second e-GAN series organized by the Department of Commerce, Mahatma Gandhi Central University. Scholars, students and faculties across the country. मैं तो जुड़ा हुआ हूँ लेकिन कोई आवाज भी नहीं सुनाई पड़ रही, कोई कुछ कर भी नहीं रहा। Actually, sir, your voice is audible. शुरू हुआ नहीं, जरा आप उनको बता दीजिए जो आपके हेड है कॉमर्स के, जिनको करना है। Sir, your voice is audible. 10 हो गया, मैं तो 10 मिनट से जी। Sir, you are visible and your voice is audible also. It's my privilege to welcome our dignitaries, students, faculties and staffs and others who are joining with us online and with University Facebook live page. So good afternoon. Owing to the prevailing circumstances and the ensuing restriction, we are conducting this e-GAN Series 2.0 in the online mode. So I, Dr. Subrat Roy, on behalf of Department of Commerce, Mahatma Gandhi Central University, Bihar, warmly welcome everybody who is here with us virtually. A very hearty welcome to the today's keynote speaker, Professor R.K. Shukla sir. I would like to extend my heartiest greetings to the Honorable Vice Chancellor, Professor Sanjeev Kumar Sharma, Mahatma Gandhi Central University, Honorable Pro Vice Chancellor, Professor G. Gopal Reddy, Chairperson of this program, Professor Pranveer Singh, Convener of this e-GAN Series 2.0, Professor Tilochan Sharma, Head Department of Commerce, MGCUB, respected deans of various schools, respected faculties from various departments, faculties of the organizing committee, staff, students, and media persons to the e-GAN Series 2.0 2021, organized by Department of Commerce. So today's topic is very important and meaningful for the research scholar, as well as the young faculties, students, and for the society who are passionate with new education policies. And I hope the grand success of this event. Thank you very much once again for giving your valuable time with us today. Thank you very much. Over to Maya. Thank you so much for the warm welcome speech that you have delivered us. Now I request Mr. Rachit Singh, research scholar, for a brief introduction of our today's keynote speaker, Professor R.K. Shukla. Very good afternoon and welcome everyone. I am Rajat Singh, research scholar at Department of Commerce, Mahatma Gandhi Central University. On behalf of the department, would take this golden opportunity to heartily welcome our next esteemed speaker and guest for today's session on National Education Policy 2020, Reimagining Vocational Education. I am elated to introduce Professor R.K. Shukla. He is professor in Department of Commerce, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore, with teaching experience for whole 38 years. He has published more than 2 dozens of research papers and half dozens of books. And Sir has also attended 10 international and more than 30 national conferences, seminars. He worked and contributed as a member of NAAC, UGC, IGNOU, etc. and as a life member of All India Commerce Association, Indian Accounting Association, Research Development Association, Indian Vocational Education Society, Indian Council of Business Education, Commerce and Management Association. Now, with no more delay, I would like to invite Sir to take over and address the gathering. Over to you, Sir. Hello. Professor R.K. Shukla, please put on your mic. Please, sir. Hello? I think due to some technical problem, it is going on. Hello, sir. Professor R.K. Shukla. Siven sir. Dr. Siven sir.
सर रवीश सर हैं क्या जुड़े हुए? रवीश सर बात कर लें एक बार सर से। हाँ हाँ, एक बार उनको फोन कर लीजिए, रवि सर को आप। हाँ रवीश सर रवि सर को फोन कर लीजिए। जी। रणवीर सर है? हाँ डॉक्टर साहब मैं हूँ। सर सर आपका स्वागत है। Very good afternoon. Thank you for making it a part of this program. Thanks a lot, sir. Grateful. Okay. शिवेन सर, बात हुई आपकी?
मैंने तो 2-3 बार बंद किया, हमने कहा पता नहीं। अब आ रही है आवाज? हाँ सर, यू आर ऑडिएबल प्लीज। यस सर। हेलो, हाँ, यू आर ऑडिएबल sir, सर। आप आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, यस सर, योर वॉइस इज कमिंग। आवाज क्यों नहीं आ रही? आ रही है सर आपकी आवाज। यस सर। हेलो, No, no, हाँ basically सर, problem is different. आवाज आ रही है? He can't hear us. हाँ आ रही है। No, the problem is different, Dr. Subrat Roy. The problem is different. You can hear him, but he can't hear us. This is the problem. Just convey to him. There might be some issue. Voice is audible. Okay, He can't hear us. There's some lack of communication. Please see to it. नमस्कार। आज मैं आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रीइमेजिनिंग वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर जो मैं ये बात करूंगा लगभग 1 घंटे, उसमें पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊंगा, एक ओवरव्यू ऑफ एनईपी में रीइमेजिनिंग वोकेशनल एजुकेशन के क्या रिकमेंडेशंस हैं, मेन रिकमेंडेशंस क्या हैं। इसके बाद थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन प्लान पे आऊँगा कि क्या एक्शन पॉइंट्स हैं, और बाद में इन इम्प्लीमेंटेशन प्लान करने में क्या चैलेंजेज आ सकते हैं, और 1-2 जो इंस्टीट्यूशन ने पहले भी किया हुआ है सक्सेस स्टोरी, जो कि अभी के में प्रोविजन किया गया है लेकिन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी कर रहे हैं, उसकी बात करूँगा। तो सबसे पहले जब बैकग्राउंड की बात आती है तो आपको मालूम होगा कि इस समय वर्ल्ड वाइड सभी जगह वोकेशनल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। यूएसए में जहां 52% स्टूडेंट हैं वोकेशनल के, जर्मनी में 70% हैं, और साउथ कोरिया में 96% स्टूडेंट्स वोकेशनल एजुकेशन के हैं। तो इस सिनेरियो से हमें पता चलता है कि हमारे देश में वोकेशनल एजुकेशन के शिक्षा की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ हम ये भी बात करना चाहते हैं कि अभी कुछ रिसर्च हुई हैं वोकेशनल एजुकेशन पर, विद्यार्थियों ने उसी समय की थी, जो कि अब अवार्ड हुई है कहना चाहिए। अभी इग्नू की एक वोकेशनल एजुकेशन पर थीसिस में इवेल्युएट कर रहा था, वाइवा भी किया, गोवा में हुआ है, हरियाणा में हुआ है। तो मैं बहुत संक्षेप में उसमें रिकमेंडेशन में आना चाह रहा हूँ कि जो हमारी पहले जो वोकेशनल एजुकेशन थी, जो 1968 में कोठारी कमीशन ने रिकमेंड करी थी और भारत सरकार ने 1988 में शुरू करी थी, उसमें क्या ऐसी बात थी कि जिसके कारण जो हमारा उस समय टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ। तो न केवल मैं, जो वो रिसर्च इस पर फोकस करके जो एकमत हुई हैं, उनका कहना है कि एक तो लैक ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी थी, वर्टिकल मोबिलिटी नहीं थी। जो हमारे पास आउट 10+2 के पास हो रहे थे, बाद में उनको यूनिवर्सिटी सिस्टम में या प्रोफेशनल एजुकेशन में एडमिशन्स नहीं मिल पा रहे थे। मेजॉरिटी जगह में ये प्रॉब्लम आ रही थी। वहाँ इक्वलेंसी की प्रॉब्लम थी, कोई रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग नहीं था। टीचर्स के जो रिक्रूटमेंट में, चूंकि ये स्किल एक विशेष किस्म के कॉम्पिटेंसी की ज़रूरत होती है, तो उसकी गाइडलाइंस में सिमेट्री थी विद लाइंस विद एकेडमिक। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई मान लीजिए इंजीनियरिंग का है, उसने ग्रेजुएशन किया है और वो कोई इंजीनियरिंग बेस्ड कोर्स को उसमें पढ़ाना चाह रहा था, तो उसकी क्वालिफिकेशन उसमें आड़े आती थी कि वो पीजी नहीं है, या वो अगर हायर एजुकेशन की बात है तो पीएचडी नहीं है। उसके असेसमेंट की बात थी, ये भी क्रिटिसिज्म आई कि जो वोकेशनल एजुकेशन के नाम पे शिक्षा चल रही है, लेकिन इसका इवेल्युएशन तो वही कॉपी पेन से ही हो रहा है, मार्क्स मिल रहा है। तो भले ही वो लड़का वोकेशनल एजुकेशन की डिग्री हो, लेकिन रियल सेंस में उसके हाथ में स्किल नहीं है। हम आपको रेफरेंस इसमें एक एग्जांपल देंगे अपने ही फील्ड का, कॉमर्स का, कि हमारा एक कोर्स था अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, एक ऑफिस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस। ये कोर्स उस समय 10+2 पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे पूरे देश में, इंक्लूडिंग आपका बिहार में। चूंकि ये स्टेट है तो बिहार की बता रहा हूँ, बिहार में भी चल रहा था। बिहार सरकार ने फुल टाइम टीचर्स भी रखे थे, लेकिन चूंकि वहाँ पर क्या था, बिहार ने एक अच्छा प्रोविजन किया था कि 10% सीटें
वर्टिकल मोबिलिटी में, जैसे एग्रीकल्चर वाले हैं या इंजीनियरिंग वाले हैं, उनके सेकेंड ईयर में रिजर्व कर दी थी। तो इससे वहां पर अच्छे लड़के आ रहे थे कि इसमें हम जा करके सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेंगे उस टेक्निकल में, इंजीनियरिंग कोर्स में। लेकिन एज ए होल वो वर्टिकल मोबिलिटी की बहुत प्रॉब्लम थी। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि पॉलिसी कई बार बहुत अच्छी होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन। जैसे पुरानी पॉलिसी भी थी, कई जगह ये बात आती है कि अरे साहब वो वोकेशनल एजुकेशन फील करिए, ऐसा नहीं है। वो चूंकि टर्मिनल नेचर का था और उसमें इस तरह की वर्टिकल मोबिलिटी न मिलने के कारण पेरेंट्स को उसमें एक ये भी दिखाई पड़ा कि समाज में इस तरह की गई धारणा कि ये तो कोई एक इंफीरियर किस्म की एजुकेशन है, या रिस्पेक्टिविटी की बात है कि कोई भी टू रिपेयर आप टू अप्लायंस का, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का कोर्स था मान लीजिए इलेक्ट्रिकल का, तो कोई ये नहीं चाहता है कि उसका लड़का केवल मैकेनिक बन जाए। हाँ, अगर आज उसको ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनने का चांस है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि जो ये हमने आपको जान के ये बातें बताई कि ये जो प्रॉब्लम्स पिछली वाली में आई थी, और यहाँ पर ये भी एक आपको थोड़ा, चूंकि हमारा अनुभव लंबा है वोकेशनल एजुकेशन से, मैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन जो कि भोपाल में है और भारत सरकार मानव संसाधन के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान है, और अपेक्स नेशनल इंस्टीट्यूट है, ये देता है एकेडमिक सपोर्ट टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी थ्रू आउट द कंट्री। जो पहले भी चल रही थी स्कीम, उसमें भी कोर्सों को बनाना, टीचर्स की ट्रेनिंग करना, ये सारे काम हम लोगों ने किए हैं। हम लोग जो स्टेट की फंक्शनरी थी उनको भी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग देते थे। तो चूंकि इस इंस्टीट्यूट ने ये सब काम किया है, हम उसके टच में रहे हैं, तो उस अनुभव से हम आपको एक बहुत छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहते हैं कि वर्टिकल मोबिलिटी इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेकिन थोड़े से इफर्ट से एक स्टेट में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम आपसे सॉल्व करेंगे कि मैं आसाम काउंसिल ने मुझे एक कोर्स बनवाने के लिए अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग का कॉमर्स बेस्ड बुलाया वोकेशनल का। उसी मीटिंग में मैंने जो कॉमर्स के इनरोलमेंट था उसकी तरफ देखा तो वो कुछ डाउनवर्ड दिखाई पड़ा। तो मैंने उसमें पूछा टीचर से कि ये क्या कारण है, ये कॉमर्स की तरफ ये वोकेशनल स्टूडेंट कम क्यों हुए, पर्टिकुलरली इस अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग में या ऑफिस मैनेजमेंट में। तो मुझे बताया गया कि यहाँ साहब जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है वो इन बच्चों को, वोकेशनल वालों को बीकॉम में एडमिशन ही नहीं देती है। तो तत्काल मैंने चेयरमैन से कहा कि आप हमको जो है वहाँ यूनिवर्सिटी भिजवाने की व्यवस्था करिए, मैं जाकर के वहाँ के डीन, वहाँ के वाइस चांसलर से मिलूंगा। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस जगह इतने ज्यादा बच्चे आ रहे थे, अचानक क्या प्रॉब्लम आ गई। तो जब हम जाके उनसे मिले, तो ये मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कभी कभी बहुत छोटी बात होती है और उससे हमारी सक्सेस प्रभावित होती है। जब मैं वहां पर गया तो संयोग से वहां जो डीन थे कॉमर्स के, उनको मैं जानता भी था, चूंकि मैं ऑल इंडिया कॉमर्स का और ऑल इंडिया अकाउंटिंग का भी लाइफ मेंबर हूँ। तो जब मैंने उनसे बात करी तो आप यकीन माने कम से कम 2-3 मिनट तो वो वोकेशनल के अगेंस्ट उन्होंने बात करी। अरे साहब ऐसा हो रहा और स्टूडेंट को ये भी नहीं आता और ऐसा पास हो रहे वगैरह वगैरह। मैंने बहुत ही शांतिपूर्वक उनकी बात सुनी और फिर हमने उनको बताया कि साहब ये वोकेशनल एजुकेशन की जो सिलेबस बनता है, आपको मालूम है ये कैसे बनता है। फिर हमने उनको ये बताया कि साहब हमारे यहाँ सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन होता है कि जो लड़का ये पढ़ रहा है उसको जॉब क्या करना है, उसको क्या क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या वेज एम्प्लॉयमेंट क्या मिलेंगे। जब वो जॉब डिस्क्रिप्शन तय हो जाता है फिर हम जॉब एनालिसिस करते हैं, उसको जॉब में क्या करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर कोई एक अकाउंटेंट है, जॉब उसका अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट को क्या क्या काम परफॉर्म करने पड़ते हैं, वो जॉब एनालिसिस। और जब वो काम परफॉर्म करने पड़ते हैं उसमें क्या क्या नॉलेज की जरूरत है, क्या उसको स्किल की जरूरत है और किस तरह के पर्सनालिटी एप्टीट्यूड की जरूरत है। जो भी नॉलेज जरूरत होती है उस सबको हम पार्ट ऑफ थ्योरी पेपर कर देते हैं। जो उसको स्किल की जरूरत है उसे प्रैक्टिकल कर देते हैं। जो उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स की जरूरत है वो पर्सनालिटी ट्रेट्स में जाती है। यही नहीं, वहां पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग का भी प्रोविजन था, जिसमें बच्चा ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए इंडस्ट्री में जाता था और अप्रेंटिसशिप एक्ट से भी वो कवर था।
जो कि इससे पहले केवल और केवल इंजीनियरिंग के लोगों को ही यह अप्रेंटिसशिप में कवर होते थे, लेकिन भारत सरकार ने वोकेशनल के स्टूडेंट को भी कवर किया था। जैसे ही मैंने उनको ये सारी बातें बताई तो उन्होंने सॉरी बोला और उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं था, मैंने कभी भी सिलेबस देखा नहीं और ये आसाम काउंसिल ने मुझे कभी भी इन्वॉल्व भी नहीं किया वोकेशनल के काम में। तो आप देखिए एक उनकी पर्सनल ग्रीवांस कि उनको कभी काउंसिल ने इन्वॉल्व नहीं किया, उनको एक्सपोजर नहीं था कि किस तरह के स्टूडेंट हैं, किस तरह का कोर्स है, और उस केवल पर्सनल कारण से उन्होंने वहां पर यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ स्टडीज में, या वो बाय द वे एग्जीक्यूटिव मेंबर भी थे, उन्होंने अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस से वहां पर बीकॉम में बैन कर दिया वोकेशनल को और उससे वो प्रभावित हुई। यहाँ मैंने ये इसलिए नहीं बताया टाइम पास, इसको इसलिए बताया कि ये एक सक्सेस स्टोरी टाइप है। जब मेरी उनसे बात हो गई वो तैयार हुए कि मैं अब इस सेशन से बच्चों को लूंगा, क्योंकि मैं अपने सिलेबस भी लेके गया था। मैंने उनको सिलेबस जो मैंने बात कही वो वर्बल नहीं कही, प्रूफ सहित उनको दिखाई कि ये देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये जॉब एनालिसिस। हमारा जो सिलेबस होता है वो बहुत थोड़ा नहीं होता है, बड़ी लंबी बुकलेट होती है जिसमें ये सारी चीजें दी रहती हैं कि क्या जॉब एनालिसिस है, क्या थ्योरी पेपर है, क्या प्रैक्टिकल पेपर है, ऑन द जॉब साइट्स कहाँ होंगी, कोलैबोरेटिव इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, वगैरह वगैरह, प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट कहाँ से होगा। तो वो इतना कन्विंस हुए, फिर हम दोनों लोग उसी समय गए वाइस चांसलर के पास, वाइस चांसलर से भी बात हो गई और हमें आपसे शेयर करते हुए प्रसन्नता है कि उसी सेशन से वहां की वर्टिकल मोबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक दूसरा उदाहरण आपको बताएं कि गोवा में हम विजिट करने गए, कॉमर्स टीचर्स की टीचर ट्रेनिंग करा रहे थे, तो मैंने वहां पर भी वही ट्रेंड देखा कि क्या कारण है कॉमर्स बेस्ड स्टूडेंट कम हो गए। तो मैंने वहां पर टीचर से मीटिंग करी तो मुझे मालूम हुआ कि वहां इतना अजीब सा कारण था कि वहां के डायरेक्टरेट ने एक सर्कुलर इशू कर दिया था कि जब तक 10+2 एकेडमिक की सीटें फुल नहीं हो जाएंगी तब तक वोकेशनल के स्टूडेंट को एडमिशन नहीं देंगे। और मजे की बात यह है कि जब वो ट्रेनिंग प्रोग्राम का वैलिडिक्टरी सेशन हुआ और हमारे बीच में गोवा के एजुकेशन सेक्रेटरी बाय द वे अतिथि के रूप में आए हुए थे, तो जब मुझे भी वहां बोलने का मौका मिला, मैंने उनसे कहा, उन्होंने जैसा कि कहा जाता है वैलिडिक्टरी में बड़ी बड़ी बातें कि हम वोकेशनल के लिए इतना कमिटेड है, हम ये करेंगे, हमारा स्टेट ये कर रहा है। तो हमने अपनी स्पीच में कहा कि आप बहुत ज्यादा ना करिए, लेकिन आप एक काम कर दीजिए कि मुझे जानकारी मिली है कि आपके यहाँ से एक जियो इशू हुआ है जिसमें इस तरह का रिस्ट्रिक्शन है कि जब तक कॉमर्स के एकेडमिक स्ट्रीम की सीटें फुल नहीं हो जाएंगी तब तक वोकेशनल वालों को आप एडमिशन नहीं देंगे। तो उन्हें बड़ी एक सरप्राइजिंग भी लगा कि अच्छा मेरे यहाँ से हुआ है, और बाद में वो विड्रॉ हुआ। तो ये छोटे छोटे इंटरवेंशन कई बार बड़े बड़े कारण बनते हैं जिससे कि बच्चे कम हुए, जिससे कि स्ट्रीम बदनाम हुई कि साहब सक्सेस नहीं है लोग चाहते। तो कई बार हमें इन चीजों को, ये हमने इस लाइफ में और कहा कि नई एजुकेशन पॉलिसी भी आएगी, उसमें बहुत अच्छी चीजें अभी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन रोल ऑफ टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा टीचर उससे जुड़ेगा नहीं, उसके साथ अच्छी मन से नहीं जुड़ेगा, जब तक कि वो स्टूडेंट को एक फैसिलिटेटर की तरह से काम नहीं करेगा, तब तक चाहे जितनी स्कीम आ जाए वो स्कीम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगी, उसका अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूँ इस समय मैंने इतना ये बैकग्राउंड बता दिया कि इंटरवेंशन की जरूरत आगे भी हमारे शिक्षकों को पड़ेगी। या ना सोचें कि अगर पुरानी स्कीम रिप्लेस हो गई है इस नई स्कीम से, और इसमें वोकेशनल का मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि अगर आप उसका डॉक्यूमेंट देखें 60 पेज का, तो उसमें 76 बार 76 टाइम वोकेशनल एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, और प्रयोग ही नहीं किया गया है, स्पिरिट में भी वोकेशनल एजुकेशन की काफी बात की गई है, मेन स्ट्रीमिंग करने की बात की गई है, इंटीग्रेशन की बात की गई है। इसका मतलब काफी कुछ वोकेशनल एजुकेशन में जो ये सोशल स्टेटस की जो स्टिग्मा था कि कम रिस्पेक्ट मिलती है या दोयम दर्जे का, इन सब चीजों को एड्रेस करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश की गई है। लेकिन वही बात फिर आएगी कि उनकी कोशिश के बावजूद हमारे शिक्षकों, हमारे जो
इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जिम्मेदारी इसे इम्प्लीमेंट करने की है, वो इसके पार्टनर हैं, वो इसके स्टेक होल्डर हैं। तो जब तक सभी स्टेक होल्डर, ये एक टीम स्पिरिट का काम है, सारी टीम जो है देश की इस स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने में नहीं लगेगी, तब तक हम इसी तरह बताते रहेंगे कि हमारा तो 5% से भी कम है, जबकि कोरिया में 96% है। यहाँ हम आपको बताएं कि अभी हमारे यहाँ जो भोपाल में हमारा इंस्टीट्यूट था उससे जुड़ा एक स्कूल भी है, डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल, जो पूरे भारत में 4 जगह है जहाँ जहाँ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, वो रीजनल इंस्टीट्यूट हमारा सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहाँ पर हमने जो वोकेशनल एजुकेशन नए कोर्स खोले हैं उसमें हमारा कोरिया के साथ एनसीईआरटी का एमओयू हुआ है। तो कोरियन की टीम जब विजिट करने आई थी, उनके साथ बैठ के हम लोगों ने उन सब्जेक्ट का सिलेबस बनाया। वो लोग आते हैं तब हम उनसे गाइडेंस लेते हैं कि भाई कोरिया में ऐसा क्या है जो यहाँ पर, तब पता चलता है कि वहाँ पर सबसे मेन चीज है कि वहाँ पर जो इंटर्नशिप पर, हैंड ऑन एक्सपीरियंस पर बहुत जोर है। जबकि पहले हमारे यहाँ हमने जैसा आपको बताया कि कई बार प्रैक्टिकल के भी मार्क्स मिले, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया या जितना सफिशिएंट स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुई। तो हमें इन बातों को ध्यान में रख करके देखना पड़ेगा। अब इसके बाद हमने आपको बताया था बैकग्राउंड के बाद जो मेन की रिकमेंडेशंस हैं उनकी तरफ वहाँ आते हैं इस बार जो की गई हैं। पहले जो 12 5-year प्लान था पिछली बार, उसमें टारगेट किया गया था कि 5% ऑफ इंडियन वर्कप्लेस इन द एज ग्रुप ऑफ 19 to 24 रिसीव्ड फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन। लेकिन इस स्कीम में टारगेट किया गया है कि 2025 तक at least 50% of learners through school and higher education system shall have exposure to vocational education। तो बहुत बड़ा टारगेट है 50%। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो GER टारगेट है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वोकेशनल एजुकेशन विल बी कंसीडर्ड while arriving at the GER टारगेट। तो इसका मतलब यह है कि अब की ये वोकेशनल आइसोलेशन में नहीं है। जैसे पहले कॉमर्स स्ट्रीम थी, आर्ट्स स्ट्रीम थी, साइंस स्ट्रीम थी, ऐसे ही 10+2 पर वो एक वोकेशनल स्ट्रीम थी। यहाँ ऐसा नहीं है। अब जो GER है, जो वोकेशनल स्टूडेंट है, उनकी काउंटिंग उसी 50% के टारगेट में होगी। तो मतलब ओवरऑल होलिस्टिक एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन विद एकेडमिक एजुकेशन में इंटीग्रेट वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन इन ए फेज्ड मैनर। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में सब हो जाएगी, उसको हमें फेज्ड मैनर में लेना पड़ेगा। बिगिनिंग विद वोकेशनल एक्सपोजर एट अर्ली एजेस। आपने देखा होगा कि इसमें क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन को प्रपोज किया गया है। यहाँ हम आपको बता दें ये जो प्रपोज किया गया है, इसको ऑलरेडी एक मिनिस्ट्री ने 1.5 साल पहले एक मॉडल स्कूल के कंसेप्ट को लेके एनसीईआरटी को दिया था। तो एनसीईआरटी ऐसे 10 स्कूलों पर ऑलरेडी काम कर रही है। पिछले साल ये कॉलेज, ये स्कूल ऑलरेडी चले गए। 4 जो वोकेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन स्कूल्स हैं, भोपाल में, अजमेर में, भुवनेश्वर में, और आपका भोपाल, अजमेर, मैसूर, इसके बाद एक हमारा जो है त्रिपुरा में किया गया है। तो ऐसे करके एक वहाँ भोपाल के बाद सीहोर में है। तो ये माना गया है कि जहाँ पर 4 डिमॉन्स्ट्रेशन है और जहाँ उनकी मॉनिटरिंग भी करें, क्योंकि उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मिनिस्ट्री के कंसल्टेशन से, स्टेट गवर्नमेंट की सहमति से, नीड बेस्ड एनालिसिस से 10 स्कूल सेलेक्ट किए गए थे, जहां पर की 6 क्लास में वोकेशनल ऑलरेडी शुरू की गई है। यही नहीं, हमारे उस इंस्टीट्यूट ने, PSSCIB ने एक गाइडलाइंस भी उन स्कूलों के लिए ऑलरेडी बना दी है, जो कि अगर आप देखेंगे तो वहां पर साइट पे, एनसीईआरटी के साइट पर पड़ी है। अगर आप देखेंगे जो आजकल तमाम चीजें जो साइट में डली हुई हैं ई मटेरियल में, उसमें वो गाइडलाइंस भी पड़ी हुई है। तो बिगिनिंग विद वोकेशनल एक्सपोजर एट अर्ली स्टेज, क्वालिटी एजुकेशन थ्रू
मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल। तो जो 9th से 12th है उसमें उसी तरह से वोकेशनल होंगे, लेकिन इस बार फर्क क्या है कि पहले हमारे पास एक रिजिड कंपार्टमेंट था, अब हमारे को मिक्स एंड मैच की भी सुविधा दी गई है, कोई भी सब्जेक्ट हम उसके साथ ले सकेंगे। इसके बाद स्मूथली इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में अभी आगे आएंगे, वी को इंटीग्रेट करना है सेकेंडरी स्कूल एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इन ऑल द इंस्टीट्यूशन, और जो इन ए फेज्ड मैनर ओवर द नेक्स्ट डिकेड, एक डिकेड का कहा गया है तो इसको फेज्ड मैनर में किया जाएगा और तब इसका पूरी तरह से होगा। कोई भी चीज शुरू की जाती है तो आपको मालूम है इवन ये हम जो 6 से करने का भी कहा तो मिनिस्ट्री ने ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी एक इनोवेटिव प्रोग्राम करके इसको चलाया, जिसकी की मॉनिटरिंग हमारा इंस्टीट्यूट कर रहा है, और भी कई अप्लाइड मैन पावर रिसर्च वगैरह उसके कंसल्टेंट भी उसमें मदद दे रहे हैं। फिर कोलेबोरेशन की बात होगी, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन विद वोकेशनल एजुकेशन टू कोलेबोरेट विद ITIs, पॉलीटेक्निक्स, लोकल बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, फॉर्म्स एंड NGOs। अभी तक क्या था कि ITI भी अभी वोकेशनल कोर्स चला दिए, वो क्या कर रहा है, पॉलीटेक्निक क्या कर रहा है, बगल का स्कूल क्या कर रहा है, वोकेट जो चला रहा है वो क्या कर रहा है, उनका आपस में बिल्कुल भी कोलैबोरेशन नहीं था, कोई उनमें कांटेक्ट नहीं था, कोई उनमें कम्युनिकेशन नहीं था, कोई वो एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज नहीं कर रहे थे, शेयर नहीं कर रहे थे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो इसमें ये भी कहा गया है कि न केवल इंटीग्रेट करना है, कोलैबोरेट भी करना है, और फोकस एरियाज है, वी कोर्सेज विल बी चूजन बेस्ड ऑन स्किल गैप एनालिसिस एंड मैपिंग ऑफ लोकल अपॉर्चुनिटीज, and technical and vocational education will become part of the large vision of holistic education। तो ये भी देखना पड़ेगा कि जहां पर खोलना है वहां की लोकल नीड क्या है। ऐसा तो नहीं है जैसे पिछली बार था, यही समस्या आई कि अगर एक किसी डिस्ट्रिक्ट ने खोल दिए 2 बहुत अच्छे पॉपुलर कोर्स, मान लिया कॉमर्स रिलेटेड ही, तो सभी ने वही अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग चला दिया, वही ऑफिस मैनेजमेंट चला दिया। मार्केटिंग उस समय, जबकि अब तो बहुत ज्यादा हो गया, कम ले रहे थे अकाउंटेंसी की तुलना में। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हो सकता है बड़े शहर के लिए जो मार्केटिंग का बहुत अच्छा है, बहुत इंटीरियर में हो सकता है रूरल इंफॉर्मेटिक्स का या कोई रूरल का जो रूरल मार्केटिंग है वो ज्यादा बेटर कोर्स हो। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वहां पर किस तरह की नीड है, हमें नीड एनालिसिस करना पड़ेगा एक सरकारी हिसाब से कि हमको देना है इसलिए दे दिया। अगर इस तरह से होगा तो जैसे पुरानी में ये कमियां आई, वो हम ये नहीं कहते, हम तो शब्द ये यूज नहीं कर सकते फेल्योर, लेकिन उसमें जो कुछ कमियां आई वो कमियों से हमें सबक लेना चाहिए, जिससे इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में वो कमियां ना आ पाए। इसमें एक और बड़ी की रिकमेंडेशन की गई है, आपको मालूम है, एक तो ये मिनिस्ट्री ऑफ MHRD की जगह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक नेशनल कमेटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, दैट इज NCIVE, along with industry participation to oversee the efforts and should also earmark budget for promotion this integration। तो इसमें देखिए ये भी फर्क है कि इसमें इंटीग्रेशन के लिए भी एक हायर पावर कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करेगी, और इसके पार्टनर में इंडस्ट्री भी है, जिससे कि इंडस्ट्री अपनी रिक्वायरमेंट को बताए, जॉब ट्रेंड के हिसाब से उसको प्रॉपर असिस्ट करे। तो इस तरह से मिनिस्ट्री में ये भी की रिकमेंडेशन में है। और इसमें पहली बार आप देखिए ये भी किया गया कि ये केवल बताएगी ही नहीं, हमने आपको बताया शुड आल्सो अनमार्क बजट फॉर प्रमोशन ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो वो बजट भी अनमार्क करेगी, जिससे ये इंटीग्रेशन का काम केवल कागजों में नहीं रह जाए, ये फील्ड में पहुंचे, ये इम्प्लीमेंट हो पाए, इसकी भी पूरी कोशिश की गई है। अब थोड़ा सा बता दे, वोकेशनल एजुकेशन अपर प्राइमरी में पहले तो फन बेस्ड स्टडी होंगी ईयर क्लास 6 से 8 में, कैसे गिव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ इम्पोर्टेंट वोकेशनल क्राफ्ट
such as carpentry, electric work, metal work, gardening, pottery making। और आपने देखा होगा इस समय खासकर ये जो कोरोना काल में हमको ये ज्यादा खला कि स्किल की कितनी जरूरत थी। जैसे हेल्थ केयर के केस में देख लीजिए, हर जगह ये प्रॉब्लम आ रही है, साहब हेल्थ वर्कर नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर ट्रेंड वर्कर नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्या शो कर रहा है कि हमने समय रहते इस तरह के जो हेल्थ कोर्स थे, हमको याद है पुराने कोर्स में भी मेडिकल लैब टेक्नीशियंस वगैरह थे। आज वो टेक्नीशियन जो थे लैब वाले, वो आज कितने काम आते अगर वो कंटिन्यू करते रहते। हमें याद है आंध्र प्रदेश वो स्टेट था जिसमें इस तरह के हेल्थ रिलेटेड कोर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, जबकि ये कॉमर्स से रिलेटेड, होम साइंस से रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड रोड महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर हुए। यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट सीरियस थी और उन्होंने अपने यहाँ उस समय डायरेक्टरेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन सेपरेट बनाया था, जैसे महाराष्ट्र ने, तो वहां पर वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम ज्यादा अच्छे चले थे। ये मैं केवल एक फौरी तौर पे नहीं कह रहा हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट ने सक्सेस स्टोरी छापी थी, हमें अभी भी याद है। उसमें महाराष्ट्र था, उसमें हरियाणा था, उसमें चंडीगढ़ था। और उस सक्सेस स्टोरी में क्या था कि वो लड़का पास करने के बाद क्या काम कर रहा है, कितना पैसा मिल रहा है, उसका पता क्या है, क्यों, जिससे कि उसकी रिलायबिलिटी अगर कोई चाहे तो जा करके पता, रिसर्चर खासकर जो वोकेशनल एजुकेशन के रिसर्चर हैं वो जा करके उनसे संपर्क कर सकते हैं कि वो आगे क्या कर रहा है। उनका दुर्भाग्य क्या था कि इतना करने के बावजूद जितना उनको हाईलाइट होना चाहिए या कोई ऐसा फोरम हो जहां वो पॉपुलराइज हो, जहां इस तरह की सक्सेस स्टोरी दिखाई जाए, शेयर की जाए, वो शायद इतना ज्यादा नहीं किया गया। नहीं तो बहुत सी सक्सेस स्टोरी, एक आदमी हमने आपको बताया पूरी किताब है कि महाराष्ट्र की सक्सेस स्टोरी थी, कर्नाटक की थी, हरियाणा की थी, फिर आपके चंडीगढ़ की। तो फन बेस्ड एक्टिविटीज क्लास 6 से 8 में, और इसीलिए शुरू में जो लोग डिमॉन्स्ट्रेशन स्कूल के स्टूडेंट रहे होंगे, एनसीईआरटी के जो स्कूल्स हैं, वहां उसको नाम दिया गया था मल्टी स्किल, मल्टी डिमॉन्स्ट्रेट। तो मल्टी का मतलब तमाम स्किल, केवल एकेडमिक स्किल नहीं कि नॉलेज वाली, उसको ये सब काम इलेक्ट्रिक जो है ये फिर से आ रहे हैं। ये ऑलरेडी उस समय सिखाए जाते थे सारे डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल्स में, इसका एग्जाम होता था, इसकी ग्रेडिंग होती थी, इसके टीचर्स होते थे। तो कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है, पहले भी था लेकिन बीच में विलुप्त हो गया। इसकी वही स्थिति है जो योगा की हुई कि एक टाइम हमारे यहाँ कितना ज्यादा योगा यहीं से निकला, कितने हमारे योग गुरु रहे हैं, लेकिन बीच में थोड़ा कम हो गया और फिर यूएसए जाके जब योग का योगा होके आया तो अब फिर इसने धूम मचाई है। थैंक्स टू रामदेव जी, कोई पॉलिटिकल बात नहीं, लेकिन कम से कम आज हमारा योगा फिर से इस तरह से पॉपुलर हो गया है। तो इसी तरह हमको फिर से इन अपने जो ऑक्युपेशनल बेस्ड है, तमाम ऐसे परंपरागत पेशे हैं जो कि कई फैमिलीज में पुश्तैनी तौर से भी चले आ रहे हैं, उन पर भी ध्यान है, जिसमें कि क्वेश्चन है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। उनको काम तो बहुत अच्छा है, शायद हमारे जो बीवॉक का लड़का भी नहीं कर पाएगा, उससे अच्छा करते, लेकिन उनके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है। तो उनको इस तरह से डिप्लोमा दे करके, उनको डिग्री दे करके उनको रिकॉग्नाइज करने की बात तो अभी आगे हम बताएंगे। अच्छी बात यह है कि इस पॉलिसी ने उसको भी एड्रेस किया है और रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग की भी बात की गई है। इसके बाद, in addition to traditional academic courses, vocational course will be offered in class 9, 12th in secondary school. Student will be allowed to mix and match academics with skill education, with sports, with arts, with soft skill training. पहले ये रिस्ट्रिक्शन थी कि नहीं वोकेशनल वाले हैं तो ये नहीं ले सकते, उनके साथ नहीं था, वो आर्ट नहीं ले सकते, वो फिजिकल नहीं ले सकते। अब वो बंदिश खत्म कर दी गई है, जो टाइट कंपार्टमेंटाइजेशन था वो अब इस पॉलिसी ने समाप्त किया। फिर एक्सपेंशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन किया जाएगा। फिर वोकेशनल एजुकेशन थ्रू ओपन स्कूलिंग पर भी काफी ध्यान दिया गया है। आपको मालूम है NIOS है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, जो कि काफी ज्यादा काम कर रहा है। आपको जान के अच्छा लगे शायद कि एट प्रेजेंट 5% of the cumulative enrollment, that is 27 lakhs, is under vocational course
by NIES under ODL, distance learning. Vocational course offered by NIES will be expanded and strengthened for meeting the learning needs of young people in India who are not able to attend a फिजिकल स्कूल, जो रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते, उनको वो एड्रेस कर रहा है। तो इस स्कीम में भी उसको और बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए प्रयास किए गए। अब जिसमें आप हैं बी वोकेशनल एजुकेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल ऑफर vocational education either on their own or in partnership with industry। तो अगर जो ऐसी जगह हैं या जो ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं जो ध्यान देते हैं बच्चों के कैरियर पर, जो देश की डिमांड पर देख रहे हैं, जो एम्प्लॉयर की डिमांड पर देख रहे हैं, तो वो लोग इंडस्ट्री से भी टाई अप करके भी ऐसे अच्छे कोर्स क्योंकि अगर इंडस्ट्री वाला उनको ट्रेनिंग करने के लिए तैयार है, उनको सर्टिफाई करने के लिए तैयार है, उनके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार है। हमने तो ऐसे इंडस्ट्री वाले देखे हैं जो कि फाइनेंशियली भी असिस्टेंस देने के लिए, क्योंकि जो उनके CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें वो चाहे तो इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियली भी मदद कर सकते हैं और कर रहे हैं। बी वोकेट जो बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन डिग्री इंट्रोड्यूस हुई थी, जैसा कि आपको मालूम है UGC द्वारा 2013 में, वो विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट रहेंगी, वो बराबर चालू रहेंगी, उन्हें कोई बंद नहीं किया गया है जैसे MPhil। वोकेशनल कोर्स विल बी अवेलेबल टू स्टूडेंट enrolled in all other bachelor's degree program including the 4-year holistic bachelor's program। आपने देखा है कि इस बार एक 4-year bachelor's program की भी बात की गई है, तो ये बहुत अच्छी बात की गई है कि वोकेशनल कोर्स उनको भी अवेलेबल होगा जो बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम कोई भी हो, उसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं साहब ये 3 ईयर वालों को दिया जाएगा, इनको नहीं दिया जाएगा। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मैपिंग ऑफ वोकेशनल जॉब रोल्स अंडर NSQF, जो एक अभी 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ MHRD उस समय थी, वो एक अब तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई, एक बहुत बड़ा वो लाई थी फ्रेमवर्क, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसमें कि सारे जॉब्स को नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड से उसके क्वालिफिकेशन पैक बना करके क्या क्या कॉम्पिटेंसी की जरूरत है, कॉम्पिटेंसी के हिसाब से उसको डेवलप कर रही थी जॉब बेस्ड, और इसमें तमाम सेक्टर बनाए गए थे। हमें ये बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समय इंस्टीट्यूट 26 सेक्टर पर काम कर रहा है। उन लगभग मोर देन 20 सेक्टर्स के जो करिकुलम है वो बन गए हैं, उनकी किताबें काफ़ी सेक्टर्स की बन गई हैं, जो कि आप देखें तो वहाँ पर अवेलेबल है वेबसाइट में। और इस तरह की जो भी चीज़ें, जैसे वीडियो वाला भी जो हमारे यहाँ मूक वगैरह भी जो बन रहे हैं वोकेशनल वालों के, वो भी उसमें डाले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है जो फंड्स अभी नई में आई है, ये कुछ साल पहले से तमाम इंस्टीट्यूट जो कि मिनिस्ट्री ने पहले से सोच के, कि चाहे आप उसको पायलट समझ लीजिए स्टडी के हिसाब से कि पहले देख ले, सक्सेस हो तब रेप्लिकेट करें, तो कई ऐसे जो अच्छे स्टेप्स हैं वो पहले लिए जा चुके हैं। तो मैपिंग ऑफ वोकेशनल जॉब रोल्स ऑफर्ड इन स्कूल टू द BVoken and other vocational course offered at higher educational institution, encouraging more higher education institutions to offer vocational degrees and skill-based course. Weightage to students who have cleared NSQ level 4 courses at school level to enter higher level vocational course to ensure their वर्टिकल मोबिलिटी। ये बहुत ही बड़ी बात है कि जो भी लड़का +4 पर NSQF पे, आपको बता दें, मैं भूल गया कि शायद कुछ लोगों को नहीं हो, ज़्यादा को तो मालूम होगा कि NSQF के 10 लेवल होते हैं, 1 to 10। फर्स्ट लेवल 9th में है, जब ये लागू हुआ था तब वोकेशनल एजुकेशन 9th से थी। तो फर्स्ट लेवल है 9th, 10th, 11th, 12, 1 2 3 4। इसके बाद डिग्री में था 5 6 7, फिर था PG 7 8 और 10 था डॉक्टरेट। तो इस NSQF में टर्मिनल नेचर पुराना वाला नहीं था, इसमें शुरू से जब लड़का एंट्री करेगा, अगर उसने ऑटोमोबाइल लिया तो वो ऑटोमोबाइल का PhD भी कर सकता है, MBOC भी कर सकता है। और मुझे शेयर करते हुए प्रसन्नता है कि अगर आप देखें
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, उन्होंने बी वोक रिटेलिंग, बी वोक BFSI बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज BFSI, उन्होंने और भी इंजीनियरिंग बेस्ड कोर्स, तमाम कोर्स जो खुले थे बहुत कम समय में उन्होंने उसको रेप्लिकेट किए, क्योंकि स्टूडेंट की बड़ी भारी अच्छी संख्या टाटा इंस्टीट्यूट में इसमें भाग ले रही थी और उनको जॉब मिल रहा था। खास बात यह है कि ले रही थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेने का कारण ये था कि उनको मार्केट में जॉब मिल रहा था इसको करने के बाद। तो इसमें पूरी मुवक्कल बी वॉक, एम वॉक और डी वॉक की व्यवस्था की गई थी। इसमें यह भी प्रोविजन इसमें किया गया है कि जो लोक विद्या है हमारी, नॉलेज डेवलप्ड इन इंडिया विल बी मेड एक्सेसिबल टू स्टूडेंट थ्रू इंटीग्रेशन इनटू वोकेशनल एजुकेशन कोर्स, उसमें इस तरह की जो लोक विद्याएं हैं उनको भी समाहित किया जाएगा। एक और बहुत अच्छी चीज, खासकर हमारे कॉमर्स के, इंजीनियरिंग के लोग तो और अप्रिशिएट करेंगे, इंक्यूबेशन सेंटर्स की इसमें बात की गई है। तो जो इंक्यूबेशन सेंटर्स विल बी सेट अप इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री। और मैंने अभी देखा वेरी रिसेंटली, में मुश्किल से कोरोना हो जाने के कारण अभी नहीं गया, 3 महीने बीच में थोड़ा अच्छा था, तो एक बार जाने का मौका मिला। तो जो हमारी IIT इंदौर है, इसने इंक्यूबेशन सेंटर अभी किया है, और हमारे यहाँ जो स्किल की यूनिवर्सिटी है सिम्बायोसिस की, उन लोगों भी खोलने के प्रक्रिया में काफी आगे बढ़ चुके। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स जो आ रहे हैं, उसमें जो लड़के आ रहे हैं उनको गाइड किया जाएगा, उनको अपने स्टार्टअप खोलने में मदद की जाएगी, उनको न केवल जॉब की, वो दूसरों को जॉब दें, इसके लिए उनको तैयार किया जाएगा। और इस इंक्यूबेशन सेंटर के लिए जो लोग हैं जानते ही होंगे, जो नहीं है समझ लें, इसके लिए UGC उनको पैसा भी दे रही है इंक्यूबेशन सेंटर खोलने के लिए। फिर अलाइनमेंट विद NSQF विल बी डिटेल्ड फर्दर फॉर ईच डिसिप्लिन। अभी जो है कॉमन NSQF है, इसको डिसिप्लिन वाइज बनाया जाएगा, जिससे कि और स्पेसिफिक किया जा सके। Indian standards will be aligned with the international standard classification of occupation maintained by the International Labour Organization। जो ILO के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से इस जो जॉब के NOS हैं इनको बढ़ाया जाएगा। The framework will be provided to basis for recognition of prior learning। यही नहीं, एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी बनाई गई है, portal for monitoring and tracking of the vocational education, fetching data of students moving to ITIs, polytechnics and skill development program of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship। क्योंकि यहाँ आपको हम बता दें कि पहले ये पूरा वोकेशनल MHRD के अंडर में था, बाद में जब NSDC हुई, जब ये स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप आ गई, तो इसका काफी काम MSD देख रही है। जो आज जॉब रोल में जो QPs बन रही हैं, जो उनको रिकॉग्निशन दिया जा रहा है, उसको कोडिंग दे रहे हैं, जब वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो उसको एक कोडिंग दे देते हैं, तभी उसको लागू किया जा सकता है। किसी स्टेट को आप दे सकते हैं, मिनिस्ट्री उसको अश्योर कर रही है। तो इस वाली पॉलिसी की वजह से MHRD जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में भी और क्लोजनेस बढ़ेगी, और दोनों के जो जॉइंट एफर्ट्स हैं उसका भी फायदा हमारे वोकेशनल स्टूडेंट्स को मिल पाएगा। अब लास्टली हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन प्लान पे थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि गोल क्या था कि एटलीस्ट 50% ऑफ लर्नर थ्रू द स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम शैल बी एक्सपोजर टू बी। तो इसमें एक्शन क्या होगा? चिल्ड्रन विल बी एक्सपोज टू बी फॉर class 6 onward in all secondary and higher secondary school through integration of vocational education with general education subjects। इसी तरह अगला गोल था कि awareness about the importance of vocational education through social media and ICT। इसका एक्शन पॉइंट है कि awareness program will be organized to change the general perception and attitude towards वोकेशनल एजुकेशन। आपको मालूम है कई बार इसमें मेंटल ब्लॉकेज की बात है कि साहब इसमें रिस्पेक्ट, डिग्निटी ऑफ लेबर को हमें मेंटेन करना है। जो आप देखिए दूसरी जगह, जैसे भी हमने आपको बताया था कोरिया का उदाहरण, तो लड़का जो है 3 दिन पढ़ रहा है, वहां 3 दिन इंडस्ट्री थॉमसन उनको बुला रहे हैं, टीवी बनाने वाले बुला रहे हैं, उनके यहाँ जाके वो करते हैं,
और जैसे आपके यहाँ इंजीनियरिंग वालों को लेने आते हैं, ऐसे ही उनका खत्म नहीं हो पाता है और वो जाके वहाँ एम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो चूंकि उनको मालूम है कि हमारे को कोई दिक्कत नहीं, एम्प्लॉयमेंट मिलना है, तो इसलिए वो एम्प्लॉयर उनको इतना वेलकम करते हैं, इतनी अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये हमारा ही एसेट है फ्यूचर का। ये बात जो है हमको इंडियन इंडस्ट्री को भी और अच्छी तरह समझानी है। हालांकि वो समझने लगे हैं, लेकिन जितना स्कूल या कॉलेज इंडस्ट्री लिंकेज स्ट्रांग होने चाहिए उतने हमारे यहाँ स्ट्रांग नहीं है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब ज्यादा होने लगे हैं। अगला गोल था स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू मिक्स एंड मैच एकेडमिक्स विद स्किल एजुकेशन विद स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स। तो इसमें कोलेबोरेशन ऑफ स्कूल्स विद ITIs, पॉलिटेक्निक्स, लोकल बिजनेस, अभी आपको बताया था इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, एग्रीकल्चर फॉर्म एंड इवन कोई अच्छे NGO है जो रियल सेंस में केवल ग्रांट खाने वाले नहीं, जो स्किल में जिनका कुछ टारगेट है, जो कमिटेड है, ऐसे भी लोग हैं, तो हमें उनके साथ भी काम कर सकते हैं। अगला है कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन इन क्लास 9 to 12 सो दैट चिल्ड्रन कैन मेक ए कैरियर चॉइस। ये गोल था बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, एस्पिरेशन एंड एबिलिटीज। तो इसके लिए एक्शन क्या लिया गया है कि स्किल बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट SBAT will be introduced in class 8 to provide guidance to the student for making informal career choice. Next goal था innovation and entrepreneurship will be promoted in schools through problem based learning and enterprise education. इसमें एक्शन क्या किया गया है? वोकेशनल कोर्सेज ऑन न्यू एंड इमर्जिंग स्किल डिमांड्स ऑफ द इंडस्ट्री सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे रोबोटिक्स है, will be introduced and enterprise education will be promoted from class 6 onwards. यहाँ हम आपको बता दें, उन कोरियल टीम जिनसे हमारा MOU हुआ था, उनकी एडवाइस पर यहाँ मैकेट्रॉनिक्स कोर्स वहाँ पर ऑलरेडी चालू हो गया है भोपाल के डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल में। उसका सिलेबस भी उन्हीं लोगों के साथ बैठ के उन्हीं के कोलैबोरेशन से बनाया गया है। चूंकि भविष्य में आपने देखा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की, आपकी ब्लॉकचेन्स की, इन सब की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, प्री सर्विस ट्रेनिंग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर प्रिपेयरिंग वोकेशनल टीचर्स ट्रेनर थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड टू बी ऑफर्ड थ्रू SCRT एंड डाइट्स। इसमें हम आपको एक और बता दें कि मिनिस्ट्री ने अभी पिछले साल, आप देखिए कि ऐसा नहीं, कितनी तैयारी थी कि एक निष्ठा प्रोग्राम शुरू किया जो कि NCERT ने पूरे देश में, वो चाहे बिहार हो या कहीं हो, सब जगह वहां पर जो स्कूल के हेड मास्टर हैं, जब ये 6 to 8 आएगी और एकदम से उनको लगेगा कि ये क्या आ गया और क्या बर्डन आ गया और हमें और देखना पड़ेगा, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए एक निष्ठा जो प्रोग्राम किया गया वो ऑलरेडी, हालांकि जो हमारा कोरोना साथ में आ गया तो उसने निष्ठा की जो तीव्रता है उसको थोड़ा कम किया, तो नंबर ऑफ प्रोग्राम कुछ कम हुए, लेकिन पूरे देश में निष्ठा के काफी प्रोग्राम किए गए, जिसमें कि तमाम NCERT हेडक्वार्टर, रीजनल इंस्टीट्यूट और PSIB की फैकल्टी ने जाकर के वहाँ के प्रिंसिपल हेडमास्टर्स की ट्रेनिंग करी है और उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लास्टली, वोकेशनल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर प्रमोटिंग यूज ऑफ ICT, इसकी बात की गई थी गोल में। तो इसका एक्शन ये हो गया कि न्यू लर्निंग मेथड्स एंड डिजिटल टूल्स लाइक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज MOOC हमारे यहाँ भी बन रहे हैं। अभी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग एंड रिसर्च है भोपाल का और चेन्नई ने इसमें लीड किया है, वो भी इसमें MOOC बना रहा है वोकेशनल स्टूडेंट्स के। एंड वर्चुअल लर्निंग मेथड्स विल बी यूजफुल फॉर ट्रेनिंग टीचर्स। तो इस तरह जो जो गोल थे उनके एक्शंस हो गए हैं। ये हो गए आपके की। अब इसमें बात आखिरी में इस पर आ जाए कि जो ये इम्प्लीमेंटेशन होगा इसमें चैलेंजेस क्या हैं। तो चैलेंजेस ये हैं कि हमने पहले भी कहा था कि हमारे लेस देन 5% लोग हैं जो कि वोकेशनल हो पाए हैं। जो हमारा टारगेट था पिछला, वो भी पूरा 5% नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो अभी कहा गया है कि हमारे 50% का जो टारगेट है,
अगर हम देखें हमारी 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो उसमें जो 30 साल तक के जो स्टूडेंट हैं, अगर एक रफली एस्टिमेट करें तो ये हो गए करीब करीब जाके 300 मिलियन। इन 300 मिलियन को अगर हमें 2025 5 साल का कहा है, तो इसका मतलब 60 मिलियन स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करनी है। तो 60 मिलियन स्टूडेंट की ट्रेनिंग का मतलब है कि ये बहुत बड़ा कठिन काम है। ये बहुत ज़्यादा, इसमें कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, कितने इसमें कम से कम 6 लाख ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसमें रियल सेंस में इम्प्लीमेंटेशन का चैलेंज है। लेकिन हम इस चैलेंज को थोड़ा सा मैंने इसमें सोचने की कोशिश करी, क्या कर सकते हैं कि जो ये 60 मिलियन है इसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। 30 मिलियन जो हमारे ऑलरेडी ऑर्गेनाइज सेक्टर है, आपने देखा होगा आजकल जो स्ट्रीट वेंडर है बेचारे, कोविड में खास तौर पे कितनी प्रॉब्लम हुई, इधर से उधर जा रहे हैं, उनके पास बहुत उसमें स्किल्ड वर्कर है लेकिन उनके पास कोई वैसा सर्टिफिकेशन नहीं है। तो अगर हम रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के ट्रेनिंग इन 30 को दें और उनको कुछ फॉर्मल वो दें जिससे उनको रोजगार मिले, और 30 मिलियन को अपने रेगुलर स्किल प्रोग्राम में ले, तो इस 60 के 2 भाग हो सकते हैं। तो शायद कुछ हद तक हम इसमें काम कर पाएंगे। इसी तरह हमारा एक इसमें सजेशन इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस में है कि चूंकि ये इतना बड़ा काम है, हमने आपको बताया, तो इसलिए इसमें हमारे पूरे देश में लगभग मोर देन 600 डिस्ट्रिक्ट है। तो हमें मॉडल स्किल सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में बनाना पड़ेगा, तभी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस जो हमारा ये कोई वैसा नहीं, ये तो वोकेशनल का एक अभियान है, तो उस अभियान में जिस तरह ये बड़ा अभियान है इसको उसी बड़े दृष्टिकोण से ही इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके डिस्ट्रिक्ट मॉडल बनाना पड़ेगा। इसी तरह हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इंडस्ट्री से लिंकेज बनाने पड़ेंगे, उनको हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, चाहे हम जब सिलेबस बनाएं, चाहे हम बाद में जो इवेल्युएशन कराएं, हम उनको गेस्ट फैकल्टी में लेक्चर के लिए भी बुलाएं, वो क्या चाहते हैं वो पता चले, किस तरह के मैन पावर की जरूरत है। उस पर जो रिसर्च आजकल यूनिवर्सिटी में तमाम हो रही है फॉर द सेक ऑफ PhD ओनली, उनको भी अगर हम इसमें पॉलिसी मैटर की तरफ मोल्ड कर दें, RDC मेंबर्स ये ध्यान दें कि कुछ ऐसी स्टडी भी हो जाए जिससे कि उस डिस्ट्रिक्ट की क्या नीड है, किस तरह के रोजगार की जरूरत है, किस तरह के मैन पावर की जरूरत है, तो उसी से रिलेटेड कुछ कोर्स स्पेसिफिक वहाँ चलाए जा सके। इसके बाद जो अप्रेंटिसशिप स्कीम है, जो कि पहली वाली स्कीम में थी, उसको फिर से स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हमारे वोकेशनल को भी अप्रेंटिसशिप मिलनी चाहिए, जो कि अभी हायर एजुकेशन वालों को मिल नहीं रही है, केवल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को मिल रही है। अभी हमने आपको बताया था रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के लिए इंस्टीट्यूशंस को या तो कोई डिपार्टमेंट या कोई सेल इस तरह के रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग करना पड़ेगा। अब इसके बाद मैंने बताया था आपको 1-2 बातें सक्सेस की भी बता देंगे। तो इसमें आप ये देखिए कि एक तो हमने आपको टाटा इंस्टीट्यूट बताया ही था। हमारा दूसरा मॉडल, बाय द वे, मैं जो सिम्बायोसिस आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज है उसकी गवर्निंग बॉडी का भी UGC का मेंबर हूँ, तो मुझे एक्सपोजर हुआ, मैंने देखा कि सिम्बायोसिस ने 2 स्किल यूनिवर्सिटी खोली, एक पुणे में और एक इंदौर में। तो जो पुणे वाली उनकी यूनिवर्सिटी है वो प्योरली वो जो है वोकेशनल के जो नॉर्म्स हैं इंडस्ट्री के साथ मिल करके चला रही हैं, और उनके यहाँ उन्होंने मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिस्ट जो कि इस स्कीम में आया है उसको भी ऑलरेडी लागू किया हुआ है। पूना में जो लोग रह रहे हैं, सुन रहे हो, वो जाके देख सकते हैं। क्रेडिट बेस्ड है, उनके जो डिप्लोमा डिग्री जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसका 20% इवेल्युएशन भी इंडस्ट्री कर रही है, और जो मैंने कहा वो कहा ही नहीं, उसको लोग इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। उस पूना यूनिवर्सिटी में सिम्बायोसिस के डिपार्टमेंट ऑफ RPL है, एक डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग है। उनके यहाँ हर स्टूडेंट को हर साल 2 मंथ इंटर्नशिप पर जाना जरूरी है, जो लर्निंग बाय डूइंग जो गांधी जी ने कही थी उसको वो शर्तार्थ कर रहे हैं। और फाइनल ईयर के स्टूडेंट को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। और यहाँ विशेष बात यह है कि ये जो 2-2 महीने, ये जो
2-2 मंथ की ट्रेनिंग में जाते हैं, ये उसी कंसर्न में जाते हैं जो उनकी तय हो जाती है। तो कहने का मतलब 2 और 6 ऐसे करके 10 महीने रिगरस ट्रेनिंग उनकी एक पर्टिकुलर जगह हो जाती है, और बाद में वो इंडस्ट्री जब उनकी कॉम्पिटेंसी से इम्प्रेस होकर के उनको एम्प्लॉयमेंट में बहुत सुविधा हो रही है। उन्होंने इंडस्ट्री कोलैबोरेशन बहुत क्लोज कर रखा है। वहाँ पर उन्होंने नाम दिया है, जैसे एक उनके यहाँ जो आपका बैंकिंग का कोर्स है उसमें उन्होंने SDFC और ICIC से कोलैबोरेट किया है। तो उनके यहाँ कैंपस में ही उनका कुछ चीज़ें हैं जिसको उन्होंने कहा है लर्निंग फैक्ट्रीज। तो वो लोग उस कैंपस में आते हैं, लड़कों से इंटरेक्शन करते हैं, उनके प्रैक्टिकल का भी काम होता है। तो बजाय उसके वो वहाँ जाएं, वो SDFC और वो ICIC वाले वहाँ आ रहे हैं, उन्होंने उनसे कोलैबोरेट कर लिया है। दूसरा उन्होंने खोला है इंदौर में। तो ये प्रसन्नता का विषय है कि मैंने अभी PSS CIB की बात करी, लेकिन आपने देखा होगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लिखा तो इनके में इंदौर यूनिवर्सिटी है। तो मैं आजकल डेपुटेशन में पिछले 2 साल से स्कूल ऑफ कॉमर्स देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर में हूँ। तो मुझे इस स्किल यूनिवर्सिटी को भी एक दिन देखने का मौका मिला था। तो ये लोग भी इसमें काम कर रहे हैं, जैसे लॉजिस्टिक के क्षेत्र में, ब्यूटी एंड वेलनेस में BSc 3 ईयर्स कोर्स। और इसमें हमने जो देखा, जो मुझे अच्छा लगा, कि जो ट्रेडिशनल मैकेनिकल इंजीनियर थी, इन्होंने उसको नाम दिया है, एक कोर्स चलाया है ऑटोमोबाइल इंजीनियर, उसको नाम ही ऑटोमोबाइल इंजीनियर दिया है। और एक जो है व्हीकल की कंपनी है, उससे इनका टाई अप है। वो लोग आते हैं, ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं, और ये लोग डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट चला रहे हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी करी गई है, ये इन्होंने जर्मन मॉडल पर डेवलप करी है। और ये जो हमने आपको बताया था, जो उसमें उसको फाइनेंस प्लाजा करके बोला गया है, वहीं कैंपस में ही उनके वो जो है ICIC और उनका एक फाइनेंशियल प्लाजा है जिसमें BFSI वालों की ट्रेनिंग होती है। रिटेल वालों का इन्होंने टाई अप किया है शॉपर्स स्टॉप से, इनके कैंपस में ही शॉपर स्टॉप्स का है। एक इनके यहाँ ब्यूटी एंड वेलनेस के लिए एक सैलून, जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है, मुझे याद नहीं, उसका भी सैलून है। तो इनके कैंपस में ही वो जो है प्लाजा है, और उसमें उनकी ट्रेनिंग होती है। यही नहीं, इन्होंने एक काम और किया है कि जो JP मॉर्गन है, जो कि वर्ल्ड के रिनाउंड फाइनेंशियल कंपनी है, बैंक है JP मॉर्गन, तो उसके CSR में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत, उनसे वो जो है 1000 स्टूडेंट्स को फ्री कोर्सेज करवा रहे हैं शॉर्ट टर्म के, और उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। उसका जितना खर्चा है वो JP मॉर्गन अपने CSR इनिशिएटिव के अंडर में पैसा खर्च कर रहा है, और इन लड़कों को बाद में जिस तरह की ट्रेनिंग दे रहा है, जो उसमें कॉम्पिटेंट होते हैं, उनको कैंपस से ले भी जा रहा है। तो ये जो है, ये जर्मनी मॉडल है। और इसमें एक ये बात और इम्पोर्टेंट है कि जैसे हमारे जो टीचर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बहुत नए नए डायमेंशंस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का भी बहुत उपयोग हो रहा है। तो जो खासकर हमारे पुराने लोग हैं, हमारे कंटेम्प्रेरी हैं, हमारे बाद के लोग हैं, उन्हें भी बहुत सी चीज़ों में अपडेट होने की जरूरत। आजकल वो टाइम चला गया, अब लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात है। ऐसा नहीं कि हमने MCOM कर लिया तो खत्म हो गया, डॉक्टरेट कर लिया। अब डे टू डे इतने डेवलपमेंट हो रहे हैं स्किल के क्षेत्र में, तो हमें ग्लोबल में अगर कॉम्पिटिव करना है, तो क्या क्या नए इनिशिएटिव दूसरी जगह हो रहे हैं, उसको ध्यान रख के हमको अपने सिलेबस को टाइमली रिवीजन करना पड़ेगा। हमारे बच्चे जो निकले, उनको इंडस्ट्री वेलकम करे उनके स्किल के बेस पे। अब वो टाइम चला गया कि केवल गोल्ड मेडल के बेस पे वो उनको वेलकम करे, क्योंकि इंडस्ट्री को इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि उनका परसेंटेज कितना हाई है। उनको इस पर ज्यादा इंटरेस्ट है कि वो हमारे क्या काम करेंगे, कितने स्किल्ड है। जब उनको टारगेट दिया जाएगा तो वो अचीव कर पाएंगे कि नहीं, वो अच्छे लीडर हैं कि नहीं, वो अच्छे टीम में काम कर पाएंगे कि नहीं। तो इस तरह की जो नई चीजें आ रही हैं, जो नया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें इन न्यू ट्रेंड्स को खुद भी सीखना पड़ेगा, तभी हम रोल मॉडल दे करके अपने बच्चों को बता पाएंगे। तो मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। अगर कोई आपके क्वेश्चंस हो तो स्वागत है।
Uh, I guess everyone present here have understood what Professor have shared with us. Thank you so much, Professor Shukla, for sharing us your journey that you have faced regarding vocational education and informative words comparing India with the rest of the world, where India stands at present and with some success story of vocational studies and also importance of vocational education in finding a job. We are grateful for the time and effort you took to share your thoughts and experience. Thank you so much, sir. Again, I request Mr. Rachat Singh, Research Scholar, for brief introduction of our today's chairperson, Professor Pravir Singh. Thank you, Mayu. It is my great honor and pleasure to introduce Dr. Tanvir Singh, who is presently working as a professor in Department of Zoology at Mahatma Gandhi Central University. Prior to joining Mahatma Gandhi Central University, he was assistant professor in Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, Madhya Pradesh. He has completed his master's degree from Banaras Hindu University. He has more than 10 years of teaching and research experience. Sir has published more than 30 papers in peer-reviewed journals and conferences and authored 4 books. His areas of interest include protein folding and dynamics using approaches of proteomics and biophysics, disease biology, evolutionary population genetics. He has been invited as a speaker at renowned universities and institutions. He has been the member of Board of Studies, Department of Biochemistry and Genetics, Barkatullah University, Bhopal, Madhya Pradesh. Now, I would like to welcome Professor Tanvir Singh to address the gathering. Thank you. Over to you, sir. Thank you, Rajat. I hope I'm audible. I'm audible. I hope I'm audible. Yes, sir, you are. Yes. Okay. Thank you. Thank you. So very good afternoon to one and all, and a big thanks to Professor R.K. Shukla for his a very enlightening and very educating lecture. He has covered the topic in its entirety. I must say he has not left anything to the chance. And the whole topic was covered in its whole possible holistic detail. I'm pretty sure that my horizons are expanded, and so others' horizons have been completely expanded this evening. A big thanks to him for sparing his very valuable time and educating us on the theme of the session today, and of course in this very trying and testing time. A big thank is also overdue to the organizers, the team of organizers, particularly Professor Trilochan Sharma, the leading light of the show, who, despite his physical infirmity and in the backdrop of a rampaging virus with its murderous onslaught, has not let the spirit of this particular program to go down or to wane down, and thanks to him, and particularly I'm grateful for making me the part of this particular program. Sir, I must share with you with extreme sense of pride that Mahatma Gandhi Central University, under the very able leadership of our beloved Vice Chancellor, has already assumed a leadership role as far as the various aspects of this national education policy is concerned. And right in the beginning, when the whole academia of our country was not even, aware with this concept of national education policy, Mahatma Gandhi Central University has organized a mammoth workshop, national conference for dealing, for enlightening and for elucidating different concepts of national education policy that was well attended by various academic leaders and also the craftsmen of the policy. And Department of Commerce, I must again congratulate Department of Commerce at that. And since then, we had a flurry of activities doing the activities that is related with the national education policy. We had very recently published a compendium of all these activities in the form of conspectus, and we are now working on the implementational strategies.
I must say Department of Commerce has again taken the lead under the dynamic leadership of Professor Trilochan Sharma and his team, Professor Sirish Mishra and all. And at that time also, this is the second version of eGyan series. Even the first version of eGyan series was a big one, and so Department of Commerce was leading. Now, coming on to this particular policy, I must say the national education policy is a real game changer as far as the vocational education is concerned, when it makes a very important observation that only less than meager 5% of the working force in India are vocationally educated when it is compared to the leaders in this field, which Sir has mentioned, Korea, where it is 96%, and UK, where it is 75%, and in America, where it is almost 52%. So national policy on education has very rightly envisaged to take up this particular gross enrollment ratio from 26% in current to the 50% by 2035. National education policy has aligned so many global goals like United Nations Population Development Fund. Way back in 2005, United Nations Development Fund has cautioned that India has an impending demographic dividend to reap on. And UNDP has projected that by right from 2005 to 2055, India will have a 65% of working age group population. So India will be on a kind of a pole position to harness that particular benefit in terms of demographic dividend. And this policy has very rightly, as Sir has mentioned, very rightly addressed the various issues like dismantling the brackets like science, humanity, extracurricular, co-curricular. It has integrated the vocational study with the mainstream higher education or the mainstream education, thus finishing or doing away with the inferiority complex that is being associated with this particular policy. Talking about look with the to the state of art, robotics, artificial intelligence induced robotics, or Internet of Things actually defines the contemporary relevance as well as the historical past. The best part is about the best part about this particular policy is the recruitment of the local experts as a faculty trainer in the university. That is again going to be a game changer. And but yes, now so as far as the policy on the paper is concerned, it looks very good. But when it comes to implementation, then there are certain questions that need to be addressed, like vocalization of education at the very beginning is fraught with some dangers, like it has the potential of distracting the first generation learners. Yes, that's a reality with the India, particularly for those belonging to socio-economic, the lower socio-economic strata. They might, exposing them to vocational education at the beginning might lead them to go for some low job. And once stuck up inside a job, they might not go for the higher education. That is one problem. Second problem might be of the, if in case of non-availability of the option of the higher education, this might again lead to the disorientation of the people of the lower socio-economic group to go for that particular thing. So we need a kind of balance, a kind of balancing act between the rush to vocalize the education, which is a need of the hour, and of course mitigating and alleviating the challenges that falls in the way. And once we have a balance, then I'm pretty sure that
this is going to be, a big asset in achieving the potential of India towards being Atmanirbhar Bharat. Thanks again, organizers. Thanks, Professor Trilochan Sharma. Thank you, Professor R.K. Shukla. Thank you, Professor Sirish Mishra, organizing team, for organizing me, for making me the part of this particular program. I'm certainly privileged to be the part of this particular program. Thanks a lot. Thank you. Thank you, Professor Praveen Singh, for the information and not leaving even a single bit regarding today's topic. Thank you for being a part of this session. I believe everyone present here have benefited a lot from you. As we come to the eGyan series, I request Dr. Rashmi Srivastav, faculty members, for vote of thanks. Hello, I'm audible. Yes. Okay. Good afternoon, everyone. Thank you so much, Mayurnyami ji. First of all, I, Dr. Rashmi Srivastav, Assistant Professor, School of Education, Mahatma Gandhi Central University, Bihar, showing my pleasure and gratitude to present vote of thanks on the behalf of Department of Commerce under Pandit Madan Mohan Malavi School of Commerce and Management Science, Mahatma Gandhi Central University, Bihar, in this virtual platform for the discussion about the new education policy and reimagining vocational education in eGyan series part 2. Firstly, I would like to give my sincere thanks to our respected and dynamic Honorable Vice Chancellor Professor Sanjeev Kumar Sharma, Mahatma Gandhi Central University, Bihar, for his blessing, motivation and continuous support. Thank you so much, sir, for your kind support. And I also want to give my heartfelt thanks to our respected Pro Vice Chancellor, Honorable Professor G. Gopal Reddy, Mahatma Gandhi Central University, Bihar, for your guidance, care and support. Thank you so much, sir. Next, I must mention our deep sense of appreciation to the chairman of the 5th day, Professor Pranveer Singh ji, Proctor and Professor Department of Geology, Mahatma Gandhi Central University, Bihar, for his valuable time in his busy schedule. Thank you so much, sir, for your presidential address and your unforgettable support. Thank you so much, sir. Next, I would like to give my great thanks to the guest of the day, Professor R.K. Shukla, Department of Commerce from Devi Ahilya University, Indore, for his valuable time, suggestion, and many more. Sir, you nicely explained all the issues and challenges related to the implementation of the new education policy 2020. Sir, you share the importance of practical knowledge of vocational education and also focus on the role of teacher, syllabus, institution, and the implementation of national vocational education policy. Sir, you suggested that hands-based activities and skill are the requirement of present scenario. Sir, thank you so much for your valuable insight in this eGyan series, which are really very helpful for us. Again, thank you so much, sir. Moving on, I would like to give my heartfelt thanks to convener Professor Trilochan Sharma sir, co-convener Professor Shirish Mishra sir, Dr. Shubhrata Roy sir, and all the member of organizing secretary, Dr. Ravish Chandra Singh, Dr. Shivendra Singh, Mr. Amanish Kumar, Mahatma Gandhi Central University, Bihar, for his uncountable contribution in this eGyan series part 2. Next, I want to show my gratitude to our Dean of various School of University, faculty member, and dear students and media persons who join this program and make it successful. Last but not the least, I want to give my great thanks on the behalf of organizing committee to the all persons who directly and indirectly support this event. Thank you so much each and everyone. Jai Hind, Jai Bharat. Over to you, ma'am. Thank you so much, Dr. Rashmi Srivastava, for the vote of thanks. Thank you everyone for participating in this session. I hope we will meet again in our next session. To wind up, I request everyone to stand on the feet to sing our national anthem. Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya He.
भारत भाग्य भाग्य विधाता पंजाब द्राविड़ द्राविड़ बंगा गंगा हिमाचल हिमाचल यमुना गंगा जल जल उज्ज्वल जलद तरंगा तरंगा तब तब शुभ नाम में में जागे जागे तब शुभ तब शुभ आशीष आशीष मांगे गाए तब गाए जय तब जय गाथा गाथा जन जन गण गण मंगलदाय जय हे मंगलदायक जय हे भारत भारत भाग्य भाग्य विधाता विधाता जय जय हे हे जय हे जय 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 हे जय 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 है।